So, in my last lecture yesterday, we have discussed about the interest under section 234 A, B, C. Okay. So, lastly, we have discussed the interest under section 234 C. Okay. Now, some other theoretical aspect that we are supposed to discuss today. Okay. So, let us start. So, now see, okay. So see, yesterday we have discussed about section 234 A, B, and C. Now, if we talk about the section 234 C, okay, 234 C, what it says, in every installment, if there is a deferment on your assessed tax, whatever installment should become due, and what advance tax you have paid in various installment, and if in that there is a difference, you can pay the interest on that. Now, sometimes what happens that the advance tax always you pay based on the estimated income. Okay, so we always try our best कि भाई હું એવો એડવાન્સ ટેક્સ ગણું और मैं ऐसा एडवांस टैक्स कैलकुलेट करूं कि मैं मुझे 234 सी का इंटरेस्ट पे करना ही ना पड़े. So you will always try to pay more advance tax so that you avoid the interest under section 234B or interest under section 234C. Ultimate government's objective is also that कि आप आपका जितना बन रहा है उतना या तो फिर ज्यादा एस्टिमेट करो एंड यू पे मोर एडवांस. ओके, बट ये क्वेश्चन माइक चालू से बेटा बंद करे दो. तो मैं अपना ऐसा एडवांस टैक्स पे करूं कि भाई मुझे कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े अंडर सेक्शन 234 बी और सी. बट सी देर आर सर्टेन इनकम विच कैन नॉट बी एस्टिमेटेड लाइक अ कैजुअल इनकम. Casual income means what? Winning from lottery or winning from races. Okay, this cannot be estimated. તમને રાતે સપનું નહીં આવે કે આ વર્ષે મને લોટરી લાગશે કે આ વર્ષે હું હોર્સ રેસમાં આટલા કમાઈશ. Now, suppose if you have earned the income by this way, then this question arises that are you liable to pay advance tax under section 234C for deferment? तो आंसर इज यस. तो ये पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैजुअल इनकम. So advance tax is payable by the assessee on his total income, which includes the capital gain, dividend, casual income, like income from lotteries and crossword puzzles also. Okay, तो आपको अगर ऐसी कोई इनकम हो जाती है तो गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग दी એક્ઝમ્પશન ટુ યુ દેટ ભાઈ આ તમને નહીં ખબર હોય કે તમને કેટલું ડિવિડન્ડની ઇનકમ આવશે કે કેટલો कैपिटल गेन થશે कि भाई कितनी लॉटरी लागશે, ये हमें पता नहीं होता है. तो सपोज आपके पास कोई घर पड़ा है और आपने बेचा, वो कितने में बिकेगा आपको एडवांस में, और वो बिकेगा या नहीं बिकेगा वो भी पता नहीं होता है. बट फिर भी आपको एडवांस टैक्स मतलब एडवांस टैक्स आपने ऑब्वियसली कम पे किया होगा बिकॉज यू कैन एस्टिमेट ओनली दोज इनकम which you are regularly earning. Okay, these are the unexpected income. बट स्टिल तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको मुझे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी पे करने का या नहीं पे करने का. बस 234 सी में क्या होता है, मैंने आपको वो एग्जांपल में करवाया कर कि भाई मैंने अपना देखो ये मेरी इनकम के बेस पे मुझे डिटरमाइन किया मैंने कि भाई मेरा 85,000 टैक्स होता है. अभी एक्चुअल टैक्स 1 लाख हो गया. तो ये जो हर एक इंस्टॉलमेंट का जो डिफरेंस है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा.
તો સમજી લો કે તમે આના પ્રમાણે પે કરતા હો અને તમને કોઈ લોટરી લાગી જાય તો એકચ્યુઅલ ઇન્કમ વધી જશે. and if your actual income will increase then this tax will also increase. and अगर ये टैक्स बढ़ गया तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. तो जनरली क्या होता है कि जो आपको लॉटरी की इनकम आती है, डिविडेंड की इनकम आती है, कैपिटल गेन आता है, तो ऑन दैट इफ द टीडीएस इज गेट डिडक्टेड देन देयर विल नॉट बी एनी सिचुएशन. टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ तो in that case see you are supposed to pay the advance tax. So advance tax is payable by the assessee on his total income which includes the capital gain, dividend income, casual income और income from lotteries. मतलब ये सब इनकम आती है आपको तो इस पे आपको एडवांस टैक्स पे करना है. तो आंसर इज यस. एंड नॉट ओनली दैट, आपको अगर उसमें डिफरमेंट आया इंस्टॉलमेंट में तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो. देयरफॉर इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट, देखो अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है यहाँ पे कि भाई एडवांस टैक्स तो आप ये इसको भरना है. तो देखिए देखो यहाँ देयरफॉर इट इज प्रोवाइडेड दैट इफ सच इनकम अराइजेस आफ्टर द ड्यू डेट फॉर एनी इंस्टॉलमेंट then entire amount of tax is payable on such capital gain casual income should be paid in the remaining installment of the advance tax which are due. And if such incomes are earned after 15 March, entire tax should be paid by 31st March. Suppose समझ लो कि आप जो भी आपका एडवांस टैक्स है वो कब पे कर रहे हो, यू आर पेइंग इन दी प्रीवियस ईयर. ओके, यू आर पेइंग इन दी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ही आप पे कर रहे हो. सपोज आपने 15 जून को पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, वो तो आपने आपकी जो रेगुलर इनकम है उसके एस्टिमेट के बेस पे आपने पे किया. अभी आप समझो कि पहला इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंस्टॉलमेंट के बीच में आपको कोई कैपिटल गेन की बड़ी इनकम है. आपको पता है कि अभी ये इनकम मेरी बढ़ी, तो आप वो दूसरा इंस्टॉलमेंट है ना उसके अंदर वो आपका टैक्स रिकैलकुलेट करके थोड़ा ज्यादा टैक्स. सपोज दूसरे और तीसरे इंस्टॉलमेंट के बीच में अगर सपोज आपको लॉटरी लग गई तो जब भी आप तीसरा इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो सी इन दैट आपका जो ओरिजिनल टैक्स आपने कैलकुलेट किया उसके अंदर लॉटरी की इनकम ऐड करके फिर से टैक्स कैलकुलेट करो और उस हिसाब से बाकी का कितना आपको एडवांस टैक्स आता है दैट यू पे. और सपोज आपको 15 मार्च के बाद लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू पे इट ऑन और बिफोर 31st मार्च. ओके, दिस इज व्हाट दिस प्रोविजन सेज. ओके, and see अगर no interest liability would arise if the entire tax liability is so big. Suppose समझ लो इस पे आपने सभी जो भी अराइज हुआ है, मतलब जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आपकी इनकम बढ़ी है और उसकी वजह से आपने अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट कम पे कर पाए और बाकी के सपोज समझी लो कि 15 मार्च मन खबर नहीं मारी, 15 जूने खबर नहीं मारी, सप्टेम्बर पहला लॉटरी लागશે એટલે પહેલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ડિફરમેન્ટ આવશે. तो क्वेश्चन अराइजेस दैट आर यू लायबल टू पे द इंटरेस्ट. तो सपोज ऐसी कोई इनकम की वजह से अगर आपका टोटल टैक्स बढ़ गया एंड ड्यू टू विच इफ द डिफरमेंट इन एनी इंस्टॉलमेंट इज अराइज, तो यहाँ पे पॉइंट ये प्रोविजो 4 क्या कहता है कि नो इंटरेस्ट लायबिलिटी वुड अराइज. तो ये केस में आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. तो आपको डिफरमेंट वाला इंटरेस्ट नहीं पे करना है. लेकिन कब, अगर आपका दूसरा तीसरा और चौथा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपका बढ़ जाता है. ओके, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो ऑब्वियसली आपका पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कम होगा. यू गेटिंग व्हाट आई ट्राई टू कन्वे? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? हेलो, यस सर. ओके, यस सर. शुरुआत में 1 लाख टैक्स एस्टिमेट कर रहे हो એટલે પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તો મેં લાખ રૂપિયા પર જ ભર્યો હોય ને સપોઝ પછી લોટરી લાગી અને 5 કરોડ રૂપિયાની, એટલે બીજા ત્રીજા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હું એ પ્રમાણે 5 કરોડ પર ભરું પણ પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તો મેં ઓછો જ ભર્યો છે, तो वहां पे डिफरमेंट आएगा. तो एम आई लायबल टू पे द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C. तो इसके लिए ये प्रोविजो कहता है कि नो इंटरेस्ट लायबिलिटी वुड अराइज इफ एंटायर टैक्स लायबिलिटी सो पे, मतलब बीजा त्रीजा चौथा इंस्टॉलमेंट में તમે બધા પર टैक्स ભરી દીધો છે, एडवांस टैक्स पे कर दिया है, तो कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. ओके, नाउ देयर इज अनदर 2 सेक्शंस. ओके, 234D. देखो, सिंपल इंटरेस्ट यू आर लायबल टू पे for at the rate %, for every month or part of the month on excess amount of refund granted under section 143 subsection 1 if on regular installment, and it is found that it is to be excessive
interest is payable for the period from the date of refund to the date of regular assessment। ओके, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट आपको गलती से ज्यादा रिफंड दे देती है। तो कुछ समझ लो कि भाई मैंने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एडवांस टैक्स टीडीएस करके 50,000 रुपये भरा। अभी गवर्नमेंट आपने आपका रिटर्न फाइल किया और उसके अंदर आपको लगता है कि मेरा टैक्स 40,000 ही आता है। आपने रिटर्न रिफंड फाइल कर दिया और जो 143(1) का जो बेसिक असेसमेंट होता है, ओके, मतलब वो सिर्फ नॉर्मल चीजें चेक करके असेसमेंट होता है। वो असेसमेंट चेक किया और आप उनको भी ऐसा लगा इनकम टैक्स वालों को कि भाई नहीं आपकी बात सही है कि आपने 50,000 रुपया एडवांस टैक्स या टीडीएस भरा है, पर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी सिर्फ 10,000 हो। ठीक है, सॉरी 10, आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से सपोज 40,000 हो। तो वो केस में गवर्नमेंट ने आपको या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको 10,000 रिफंड दे दिया। फिर आपका ये पहला असेसमेंट नॉर्मली हो गया था, रिफंड भी मिल गया। फिर आपकी फाइल गई रेगुलर असेसमेंट में, स्क्रूटिनी वाले असेसमेंट में, उसमें आपका डिटेल असेसमेंट हुआ और वहां पता चला कि तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी 40,000 नहीं पर 48,000 था। એનો મતલબ ગવર્મેન્ટ તમને કેટલું રિફંડ મળવું જોઈએ? 2,000। એ લોકોએ તમને પહેલા કેટલું રિફંડ આપી દીધું? તો કે 10,000। તો તમને એક્સેસ રિફંડ કેટલું મળ્યું? હાઉ મચ એક્સેસ રિફંડ યુ હેવ ગેટ? हेलो, 8,000। 8,000। 8,000 एक्सेस रिफंड मिला, वो आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। और वेन यू आर रिफंडिंग दैट एक्सेस रिफंड, देन ऑन वो रिफंड अकेला नहीं करना है, उस पर पर मंथ 1.5% इंटरेस्ट भी पे करना है। तो सी सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1.5% एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ on the excess amount of refund granted under section 143 subsection 1। 143(1) subsection 1 मतलब आपका जो नॉर्मल जो असेसमेंट जो होता है, ओके, जिसको हम अभी हम पढ़ेंगे, दैट असेसमेंट इज नोन एज दैट असेसमेंट इज नोन एज समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट मतलब क्या? आपने रिटर्न फाइल किया, वो लोग बेसिक चेक करके अगर उनको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है और तो आपका जो भी रिफंड अमाउंट है वो दे देते हैं। फिर उसके बाद फिर डिटेल असेसमेंट में जाता है स्क्रूटिनी असेसमेंट। उनको लगता है कि भाई समरी असेसमेंट में कुछ गलती हो गई है, लेट अस गो। समरी असेसमेंट इज अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, दैट यू कैन सी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 वाला। ये अगर समरी असेसमेंट हो जाता है कि विदाउट असेसी को बुलाए बिना, उससे कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगे बिना आपने जो भी किया है, वो जो भी सबमिट किए डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसके बेस पे उन लोगों ने असेसमेंट किया। आपने 50,000 एडवांस टैक्स या टीडीएस भरा था, आपको लगता है 40,000 टैक्स भरने का आता है, तो गवर्नमेंट ने आपने 50 भरा था, 40 आपका टैक्स आता है, 10,000 रिफंड दे दिए। देन दे रियलाइज दैट कि भाई नहीं, यहाँ पे एसओसी को बुलाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट मांगना पड़ेगा। फिर उन्होंने 143 सबसेक्शन 3 वाला स्क्रूटिनी असेसमेंट किया डिटेल, तो डिटेल असेसमेंट में पता चला कि भाई आपने एक्सेस अमाउंट दे दिया है। तो वो केस में आपने जो भी एक्सेस रिफंड दिया है, वो एक्सेस रिफंड आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। और वापस तो देना पड़ेगा, लेकिन उस पर आपको 1.5% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो simple interest at rate 1.5% for every month or part of the month on the excess amount of refund granted under section 143 on regular assessment is found excessive। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो excessive है, then interest is payable starting from the date of refund till the date of regular assessment। आपका ये regular assessment 143(3) वाला जब तक नहीं होता तब तक का पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 234D। अभी देखो सेक्शन 234F
ये आपको मैंने बताया था कि अगर आप रिटर्न, देखो रिटर्न लेट फाइल किया आपने तो क्या होगा, वो हमने देखा कि आपको 234A का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी भी लेती है। तो फीस फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 234F, अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया, ओके, तो हाउ मच पेनल्टी यू आर लायबल टू पे, ओके। तो अंडर सेक्शन 234F व्हाट इज द पेनल्टी और व्हाट इज द फीस। तो सी, अगर आपको सपोज मेरा ड्यू डेट, माय ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर, माय ड्यू डेट इज विच वन, 31 अक्टूबर, ओके। तो 31 अक्टूबर मेरा ड्यू डेट है, उस दिन मैंने रिटर्न नहीं फाइल किया, ओके। तो उसके बाद अगर मैं फाइल करता हूँ, देन इन दैट केस सी आई एम लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यू आर लायबल टू पे द इंटरेस्ट, बट यू आर नॉट ओनली लायबल टू पे द इंटरेस्ट, ओके, you are also liable to pay the, okay, so suppose समझ लो कि this is my assessment year, और ये assessment year में suppose my due date was 31st July, so this is the day on which I have to file my return। इसकी जगह मैं कहाँ तक फाइल कर सकता हूँ, देखो आई कैन फाइल द रिटर्न अप टू 31st December, तो 31st December तक मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, ये डेट चली जाने के बाद। तो यहाँ से यहाँ अगर मैं फाइल करता हूँ, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, एक कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता है कि यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। तो 234 का इंटरेस्ट तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में यू आर लायबल टू पे द फीस for late filing of return, and that is how much, fees of rupees 5,000. Suppose if you file the late return, then this is the provision that, see, if there is a delay in filing of income tax return, then rupees 5,000 is required to pay. You can see here rupees 5,000 if the return is filed after the due date but before the 31st December of the assessment year. The due date પછી અને ડિસેમ્બર પહેલા if you have filed the return, then you have to pay the 234A interest plus you are liable to pay the fees of rupees 5,000, okay। not only that, you are, see, suppose, देखो जनरली तो आपको मैंने कल पढ़ा दिया कि भाई 31 दिसंबर के बाद रिफंड रिटर्न नहीं फाइल होता, लेकिन आपको मैंने अपडेटेड रिटर्न बताया। फिर आपको कोई नोटिस आती है गवर्नमेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो नोटिस के रिप्लाई में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो आफ्टर 31 दिसंबर ऑल्सो। तो 31 ડિસેમ્બર ડઝ નોટ મીન કે ભાઈ આ તમારી ડેડલાઇન છે, આના પછી રિટર્ન ના ફાઇલ થઈ શકે, ના જ થઈ શકે। સમજો, અહીંયા ના ફાઇલ કરી શકે તો તમારે અસેસમેન્ટ યર પૂરું થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવાની, અસેસમેન્ટ યર પૂરું થાય પછી તમે યુ કેન ફાઇલ ધી अपडेटेड रिटर्न। या तो फिर आपने 31 दिसंबर तक फाइल नहीं किया, आपको नोटिस आई कि आप रिटर्न फाइल करो, तो इन रिप्लाई ऑफ नोटिस यू कैन फाइल द रिटर्न इवन आफ्टर 31 दिसंबर। अगर आपने ऐसा रिटर्न फाइल किया आफ्टर द डिसेंबर 31 दिसंबर के बाद, अगर आप डिसेंबर સુધી फाइल करो तो व्हाट इज द फीस, दिसंबर तक फाइल करते हो तो 31 दिसंबर तक फाइल करते हो तो फीस इज ₹5,000। लेकिन अगर कोई नोटिस के रिप्लाई में या तो फिर अपडेटेड रिटर्न आपने आफ्टर द डिसेंबर फाइल किया, सी, तो ₹10,000 इफ द रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब ये डेट के बाद अगर आपने फाइल किया, यहाँ ये डेट के बाद, ओके, जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर आपने अपडेटेड रिटर्न या और इन परस्यूएंट टू नोटिस इफ यू हैव फाइल्ड द रिटर्न, देन इन दैट केस यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट तो लगेगा 234A का, बट सी यू आर आल्सो लायबल टू पे द फीस ऑफ ₹10,000, ओके। तो ये आपकी पेनल्टी लगेगी, ओके। नॉट ओनली दैट, यू कैन सी एक छोटा सा दूसरा भी प्रोविजन है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो आपको ये 5,000 या 10,000 भरने की जरूरत नहीं, एक सिंपल 1,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम, ओके, इफ योर टोटल इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख, तो आप दिसंबर के बाद फाइल करो या उससे पहले फाइल करो, ड्यू डेट से बाद, लेकिन दिसंबर के बाद या दिसंबर से पहले 31 दिसंबर, तो इन दैट केस द पेनल्टी अमाउंट इज ओनली 1,000, ओके। और देखो ये फीस कब पे करनी है, अलॉन्ग विथ योर टैक्सेस, टैक्सेस की अंदर उमेर है जैसे ऑटोमेटिकली ऑनलाइन फाइल कर सुन लो, तो such fees shall be payable along with the amount of taxes payable by the assessee under section 140A। तो ये जो आप टैक्सेस पे करते हो उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, इंटरेस्ट के साथ आपको ये फीस भी पे करनी है।
So you have to pay this fees of ₹1000. ओके, 1000 फीस अगर 5 लाख से कम इनकम है तो, 5 लाख से ज़्यादा इनकम है और अगर रिटर्न आपने दिसंबर के पहले फाइल किया है, 31 दिसंबर के पहले और ड्यू डेट के बाद, देन 5000 रुपीज पेनल्टी। और अगर आपने दिसंबर के बाद फाइल किया तो देन 10,000 पेनल्टी। और अगर सिर्फ आपकी इनकम 5 लाख है तो 1000 तक की पेनल्टी। पेनल्टी वर्ड नहीं लिखा है यहाँ पे, इट इज अ फीस बट इट इज अ काइंड ऑफ पेनल्टी। नाउ सी देयर इज वन प्रोविजन, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल एक्शन आपके सामने ली जाएगी अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो देखो, देयर इज सेक्शन 276 अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सामने क्या एक्शन ले सकता है। तो सी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड ऑफ ऑन फेलियर ऑफ to file the income tax return where the tax payable by the assessee is rupees 10,000 or more। तो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट पे गणी, तो गवर्नमेंट को लगता है कि डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपको 10,000 या उससे ज़्यादा टैक्स भरना था और आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, वो बेस जजमेंट असेसमेंट तो करेंगे ही करेंगे, बट दे विल टेक अ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब यू विल बी अ लायबल फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस। और क्रिमिनल ऑफेंस में दो ही सजा हो सकती है, आपसे फाइन लिया जाएगा या तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। प्रोसिक्यूशन का मतलब ही है जब तक आप पेनल्टी पे करते हो इट इज दी नॉर्मल सिविल ऑफेंस। ओके, इट इज नॉट अ क्राइम। लेकिन 10,000 ऊपर टैक्स भरवाना होता है તમે રિટર્ન જ ના ફાઇલ કર્યું, ઓકે, તો in that case they can take the action and they can consider you as a criminal and they can do the prosecution। prosecution એટલે તમને ક્રિમિનલ ગણીને તમારી સામે એક્શન લે ને એની બે સજા હોઈ શકે, ફાઇન હોઈ શકે કા પછી ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ પણ હોઈ શકે। ओके, ये कोई इलस्ट्रेशन दिया है, मतलब ये सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ छोटे छोटे केसेस दिए हैं, तो लेट अस डिस्कस दिस केसेस। देखो कोई एक फर्म है, द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर सब्जेक्ट टू द टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44A। ठीक है, तो ये फर्म है और उसको अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं। उसका पार्टनर है, एक्स इज अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, however not entitled to receive any remuneration as per the partnership deal when he files the return of income uh, as on for the finance assessment year 23-24 as on 31st October। The assessing officer wants to charge the interest under section 234A for delay in filing the return। Is the assessing officer justified? देखो आपको मैं मतलब असेसिंग ऑफिसर ऐसा मानता है कि ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, इंडिविजुअल है, वो फर्म से कोई रेम्यूनरेशन नहीं रिसीव करता है, लेकिन फर्म का ऑडिट होता है। ओके, तो इस ये फर्म से रेम्यूनरेशन नहीं हो रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 जुलाई है एंड नॉट 31 अक्टूबर, ऐसा असेसिंग ऑफिसर मानता है। तो उसको बोलता है कि भाई जुलाई थी तो अक्टूबर सुधीનું વ્યાજ ભર તો 234 है। लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया है, what is the due date of filing of return for the partner of the firm whose books of accounts are required to be audited। तो उसके लिए मैंने आपको पढ़ा है, हमने देखा है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कि जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी, जो पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होता है उसके पार्टनर के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है, और इसने अपना रिटर्न कब फाइल किया, 31 अक्टूबर को। यहाँ असेसिंग ऑफिसर सही है नहीं सही है, ये रिटर्न फाइल करने वाला सही है। જે પાર્ટનરશિપ ફર્મ હોય એનું જો એના ફર્મનું ઓડિટ થતું હોય તો એના પાર્ટનર માટે ડ્યુ डेट કઈ કહેવાય। देखो आपको मैंने आगे ऊपर पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यहाँ पे आपको पढ़ा है कि वेयर द असेसी इज अ पर्सन अदर देन कंपनी, और इस ये इसमें क्या लिखा है, वेयर द असेसी इज अ पार्टनर इन अ फर्म whose books of accounts are required to be audited under any law, then for them what is the due date, 31st October। એટલે અસેસિંગ ઓફિસર ખોટો છે, એ કહે કે તમારા માટે જુલાઈ ડ્યુ ડેટ હોય, કારણ કે તમે રેમ્યુનરેશન નથી રિસીવ કરતા। મેં ક્યાં તમને કહ્યા એવું ભણાવ્યું કે ભાઈ રેમ્યુનરેશન રિસીવ કરે કે ના કરે, it doesn't make any difference if you are a partner of a partnership firm whose books of accounts are get audited for you
The due date of filing of return is 31st October. And here the assessee has rightly filed the return on 31st October. So he is not liable to pay any interest. So you can see the solution or answer. The due date of filing of return of the income where the assessee is a partner in a firm whose books of accounts are audited is 31st October. Consequently, assessing officer is not justifying charging the interest. मतलब यहाँ assessing officer फोटो से बराबर। तो ऐसा केस अगर आए तो आपको आंसर इतना 2 लाइन में लिखना है। इसके मार्क हो सकते हैं 5 7 जो भी। ओके, बट यू मस्ट नो द प्रोविजन। ओके, देखो यहाँ एक दूसरा केस स्टडी है। कैन एन इंडिविजुअल हु इज नॉट इन इंडिया साइन द रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया? इज देयर एनी अदर ऑप्शन? तो एज पर सेक्शन 40A, एन इंडिविजुअल, the return of income can be signed by an individual even if he is absent from India. तो बाहर रहीने फॉरेन थी पण सही કરીને ઇન્ડિયા મોકલાઈ શકે છે. And hence individual himself sign the return of income from the place outside India. ઇન્ડિયાની બહાર હોય, વિદેશમાં હોય, ત્યાંથી અહીંયા કોઈને ડિજિટલ સિગ્નેચર આપીને જાય કે પછી ત્યાંથી ઓટીપી આપે કે ત્યાંથી સાઇન કરીને મોકલાવે, डजंट मेक एनी डिफरेंस. आपका रिटर्न साइन होना चाहिए. वो कहाँ से साइन करता है, इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस. आई टोल्ड यू दैट रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी साइन. वो इंडिया से साइन होना चाहिए ऐसा मैंने आपको नहीं पढ़ाया. तो यहाँ पे देखो, हाँ, और अगर वो इंडिया में नहीं है तो वो इंडिया के अंदर किसी को अथॉरिटी भी दे सकता है. देखो, अल्टरनेटिवली अ पर्सन होल्डिंग द वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द इंडिविजुअल कैन आल्सो साइन द रिटर्न ऑफ इनकम. अगर कोई बंदा इंडिया में नहीं है तो इंडिया के बाहर भी वो साइन कर सकता है, या अगर उसको वो ऐसा नहीं करना है तो इंडिया के अंदर किसी को अथॉरिटी दे देगा, पावर ऑफ अटर्नी दे देगा, ये मेरे रिटर्न पे तो मेरे टू साइन कर देना. अगर वो दूसरा पर्सन भी ऑन बिहाफ ऑफ यू ही कैन साइन द इनकम टैक्स रिटर्न. नाउ सी, द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन whether the return of income can be revised under section 139 subsection 5 in the following cases. डिफेक्टिव रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है ऐसा पूछा है. बी लेटर रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज को रिवाइज किया जा सकता है, या तो फिर रिटर्न और लॉस को रिवाइज किया जाता है, नहीं किया जाता. तो देखो, इसके वन बाय वन हम आंसर देखते हैं कि एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 or pursuant to the notice under section 142 can be revised if it discovers any omission or wrong statement in the return filed earlier. तो कोई पण माणस ने अगर रिटर्न फाइल કર્યું जो 139 सबसेक्शन 1, देखो रिटर्न બે સિચ્યુએશન માં તમારે फाइल કરવાનું. 139 सबसेक्शन 1 मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, कि भाई इतने लोगों को कंपलसरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. और 142 सबसेक्शन 1 क्या है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगी कि तारे रिटर्न फाइल करना. तो બે કેસમાં સપોઝ તમે નોટિસના સંદર્ભમાં રિટર્ન ફાઇલ કર્યું, સ્ટેચ્યુટરીલી યુ આર લાયબલ એન્ડ યુ હેવ ફાઇલ્ડ ધ રિટર્ન. બટ ઇફ યુ હેવ ફાઇલ્ડ and after that if you are realizing that if there is a omission or wrong statement is made by you in the return filed by you, then before assessment is complete or before the 31st December you can revise the return at any number of times. જેટલી પણ વખત તમારે રિટર્ન, જ્યાં સુધી અસેસમેન્ટ પૂરું ના થાય કે 31 ડિસેમ્બર ના આવે ત્યાં સુધી તમે રિટર્ન रिवाइज कर सकते. હવે देखो, डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है. यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि डिफेक्टिव रिटर्न कैन बी रिवाइज. डिफेक्टिव रिटर्न किसको कहते हैं, मैंने आपको पढ़ा है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया और उस पर टैक्स नहीं दिया. डिफेक्टिव છે તો એમાં ડિફેક્ટ દૂર કરવાની અને કરેક્ટ કહેવાય. એટલે ડિફેક્ટ એ લોકોએ માર્ક કરી છે, પણ તમે એ લોકો કીધું કે આ સુધારી દો, તો સુધારો છે એટલે રિવાઇઝ રિટર્ન નહીં કહેવાય, એ રિટર્ન ઓરિજિનલ જ કહેવાશે. એમાં તમે ભૂલ કરી હતી એ લોકોએ માર્ક કરીને તમને કીધું. So you are changing that. So defective return cannot be revised because they have marked and they have given you 15 days time that you pay the tax. तो आपने टैक्स पे कर दिया, तो डिफेक्टिव रिटर्न विल गेट ऑटोमेटिकली बिकम गुड. डिफेक्टिव को आप रिवाइज नहीं कर सकते. देखो, डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कैन नॉट बी रिवाइज. हाउएवर द डिफेक्ट कैन बी रिमूव. જ્યારે ડિફેક્ટ એ લોકોએ તમને કીધી ડિપાર્ટમેન્ટે કે તમારી આ ભૂલ છે, તમે સુધારો, તો એને રિવાઇઝ રિટર્ન નહીં કહેવાય. તમે શું કહેવાશે કે મારાથી જે ડિફેક્ટ રહી ગઈ હતી, દેટ ઓન ઇન્સ્ટ્રક્શન given by the income tax officer I have corrected my return. ओके, अभी बी लेटर रिटर्न कैन बी रिवाइज. तो मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में कि बी लेटर रिटर्न कैन बी रिवाइज. अगर आपने एक बार रिटर्न रिवाइज कर दिया, उसको दूसरी बार रिवाइज कर सकते हो. मैंने आपको बोला जितनी बार रिवाइज करना है कर सकते हो. ओके, तो रिटर्न रिवाइज अर्लियर कैन बी रिवाइज अगेन. फर्स्ट रिवाइज रिप्लेसेस द ओरिजिनल. Therefore, assessee disclose any office or omission or wrong statement in such revised return
he can furnish the second revised return within the prescribed time limit. और within prescribed time limit क्या है? Within 1 year from the end of the relevant assessment year or before completion of assessment which year. देखो ये गलत लिखा है यहाँ पे 1 year वाला, आपको ये गलत लिखा है, मैंने आपको पढ़ा है कि भाई आपको 31 दिसंबर से पहले उसको रिवाइज करना है और बिफोर, तो ये गलत लिखा है, बहुत पुराना प्रोविजन है. You have to revise the return before 31st December और before completion of assessment whichever is earlier. वो टाइम से पहले आप जितनी बार चाहो रिटर्न रिवाइज कर सकते हो. ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन था, रिटर्न ऑफ लॉस कैन बी रिवाइज. तो यस, रिटर्न ऑफ लॉस आर फाइल अंडर deemed to be written file under section 139(1) and therefore it can be revised. तो bill-related return भी रिवाइज हो सकता है, रिटर्न ऑफ लॉस भी रिवाइज हो सकता है, सिर्फ डिफेक्टिव रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता. हमने ये सम किया है. Now we are on the another question. Okay, दूसरा question है. The last illustration है, state whether reasons whether the statements are true or false with regard to the provisions of the income tax. आपको पूछा गया है कि statement right है या wrong है, तो आप बताओ. Assessing officer has a power inter alia to allot the PAN to any person by whom no tax is payable. क्या असेसिंग ऑफिसर किसी को पैन दे सकता है? तो ऐसा हमने आगे कोई जगह पे पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं. यस, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई आप ये रिटर्न नहीं फाइल કર્યું, ટેક્સ નથી પે કર્યો, એની પાસે ટેક્સ માંગવા આવે તો કે મારી પાસે પેન નથી, તો immediately assessing officer can give the PAN to that person and allot the PAN and get the return file or collect the tax from that person. देखो सेक्शन 139 ए सबसेक्शन 2 क्या प्रोवाइड करता है? असेसिंग ऑफिसर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन as may be prescribed also allot the PAN to other person whether any tax is payable by him or not in the manner in accordance with the procedure as may be prescribed. मतलब असेसिंग ऑफिसर ने कोઈને પણ પાન અલોટ કરવાનો પાવર છે કે નહીં? તો here answer is what? Yes, he has a right to allot the PAN to any person whether the tax is payable by him or not, it doesn't make any difference, but assessing officer has a power or not. Section 139A subsection 2 says that assessing officer is having the power to allot the PAN to any person. Now the next point is, next देखो यहाँ एक दूसरी स्टेटमेंट दी है कि where the कर्ता of HUF is absent from India. कि अगर कर्ता नहीं है, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, अगर कर्ता नहीं है तो कौन रिटर्न फाइल स्पेस को वेरीफाई कर सकता है? तो दूसरा फैमिली का कोई भी एडल्ट मेंबर उसको साइन कर सकता है. यहाँ पे क्या पूछा है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है. Where the karta of is absent from India, return of income can be signed by any male member of the family. No, ये सही स्टेटमेंट है? Yes or no? No, sir. No. No. No, sir. मैंने No. सही पढ़ा नहीं कि मेल या फीमेल. मेल फीमेल डजंट मेक एनी डिफरेंस. कोई भी कैसा मेंबर होना चाहिए, एडल्ट मेंबर कैन साइन दी रिटर्न. तो देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. Section 143(40)(b provides that where the karta of HUF is absent from India, the return can be signed by any other adult member of the family and such member can be a male or female. दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो ये मेल होना जरूरी नहीं है, उसकी जगह पे कोई भी एडल्ट मेंबर साइन कर सकता है. नाउ सी कमेंट ऑन allow ability of the following claim made by the assessee. देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिसेस हेतल एन इंडिविजुअल एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर, ओके, एंड हैज गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड as on 31st March 2023 under section 44AB. Her total income for the assessment year is 2,85,000. She wants to furnish a return of income for the assessment year 23-24 from the TRP, tax return preparer. देखो, तो मैंने आपको बताया था जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होते हैं उसका रिटर्न सिर्फ सीए फाइल करेगा या तो फिर वो खुद करेगा, लेकिन टीआरपी के थ्रू आप फाइल नहीं करवा सकते. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ओके, टीआरपी छोटे लोगों का रिटर्न फाइल करने के लिए बना है. इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न. मतलब he cannot file the return of the assessees whose books of accounts are required to be get audited. तो वही लिखा है यहाँ पे. देखो section 139B provides that the scheme of submission of return for any assessment year through the tax return preparer TRP. Okay, TRP scheme I have discussed with you. However, it is not applicable to the person whose books of accounts are get audited under section 44AB
Therefore, Ms. Hetkel cannot furnish a return of income through the tax return preparer. टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किसी का भी रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होते हैं उसका रिटर्न तो कौन फाइल करेगा? उसका सीए करेगा या दूसरा कोई कंसल्टेंट करेगा। टीआरपी कैन नॉट फाइल दी रिटर्न ऑफ द पर्सन whose books of accounts are get audited। तो यहाँ कुछ एमसीक्यू भी है that you should read yourself। ओके, ये हमारे एग्जाम के लिए भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं, आपको यहाँ तक ही करना है जो भी है। तो हियर ये हमारा पूरा मटेरियल के सभी पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। ओके, रिटर्न ऑफ इनकम, इसमें हमने यूनिट 3 के भी 2 पॉइंट डिस्कस किए, यूनिट 4 के भी ऑलमोस्ट यूनिट 4 इज गेट ओवर हियर। ओके, एक पॉइंट है जो आपको मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो कंप्लीट करते ही हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारी पोजीशन कैसी है? यूनिट 1 इज ओवर। वन एग्जाम्पल वो मुझे कराना है, लेकिन मैं वो ऑफलाइन में ही कराऊंगा, ठीक है। यूनिट 2 एक चैप्टर ओवर, एक चैप्टर बाकी है, वो भी मैं आपको ऑफलाइन में ही कराऊंगा, बराबर। तो यूनिट 2 में एक चैप्टर बाकी, यूनिट 3 में 4 में से 2 चैप्टर हो गए, यूनिट 4 ऑलमोस्ट ओवर। तो ठीक है, तो कल शाम को मतलब काफी सारा, मतलब फिर हमारा 10-15% ही सिलेबस कल शाम के बाद बाकी रहेगा। तो देयर इज नो नीड टू वरी। મને તો એવું લાગે છે કે બીજલ મેડમ પહેલા મારો સિલેબસ પૂરો થઈ જશે। બીજલ મેડમ का हो गया ना? विजल मैम का हो गया। यस सर। ये तो जेके सर पहला, G5 में एक ही लेक्चर बाकी है। बीजल मैडम का एक बाकी है। मतलब मेरा भी सिलेबस आपको मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा। देखो आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा, मेरे सब्जेक्ट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं टारगेट इज टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन और बिफोर 30 दिसंबर, है ना। 30 दिसंबर से पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये यूनिट 4 का ही एक पॉइंट है। तो ये यूनिट 4 में एक चैप्टर हमारा था रिटर्न और दूसरा पॉइंट था असेसमेंट। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस द असेसमेंट। Now see, for this assessment I have taken this material from the income tax department website। So this material whatever is there, देखो ये बहुत डिटेल मटेरियल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खुद के यूज के लिए जो बना है वो मटेरियल है। तो हमें इतना डिटेल में इसको नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। हमें सिर्फ कौन कौन से टाइप के असेसमेंट हैं, वो कब तक होते हैं, उसमें क्या होता है, वही चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि भाई तो ये यूनिट 4 का दूसरा चैप्टर है असेसमेंट। ओके, तो व्हाट आई विल डू, सी आई हैव व्हाट, अभी तो मैं इसमें से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, बट आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। आई हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर द मटेरियल फॉर यू फ्रॉम दिस मटेरियल। इसमें से आपके काम का, आपके एग्जाम के लिए जो है वो अभी मैं आपको इसमें से ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन टुडे इटसेल्फ ये लेक्चर खत्म होने के 1 घंटे बाद, तो फिर कल सुबह तक आपको ये मटेरियल जेरोक्स सेंटर से मिल जाएगा और आपको मैं व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा। ये मटेरियल मैंने अपने हिसाब से बनाने का चालू कर दिया है, so that I will prepare it by today evening और I will give you। ओके, थोड़ा बहुत मैंने बना भी दिया है। ओके, देखो ये बना दिया है, लेकिन इसमें काफ़ी पॉइंट्स बाकी हैं, तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दे दूंगा। अभी तो आपको जो जहाँ से पढ़ाना है वो मैं आपको वही मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये बना के आपको मैं आज दे दूंगा शाम तक। अभी हम पढ़ने का काम है, तो यहाँ से सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये डोंट डू अंडरस्टैंड कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटरनल जो डिपार्टमेंटल मटेरियल है वो है, वहाँ से ऑथेंटिकेटेड मटेरियल आई हैव टेकन, बट सी पूरा हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। नाउ यू नो दैट, देखो हमने पढ़ लिया कि रिटर्न कब फाइल करना है, किसको फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, किसको पैन नंबर लेना है, नहीं टाइम पे फाइल किया तो क्या होगा, कब पेनल्टी लगेगी, कब प्रोसिक्यूशन होगा, कितना होगा, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस। ओके, we have also discussed the interest under section 234 ABC। we have also discussed the provisions related to advance tax। now since the assessment year I told you कि ये आपका सपोज प्रीवियस ईयर है, सपोज दिस इज योर प्रीवियस ईयर 2022-23। तो यहाँ आपका काम क्या है, इनकम को अर्न करना। फिर क्या करोगे,
ये यही साल में आप आपका जो आपको लोग इनकम दे रहे हैं उसमें से टीडीएस कट जाएगा, कभी कभी आप टीसीएस भी पे करोगे, ओके, एंड यू विल पे दी एडवांस टैक्स। तो ये सब काम आपको प्रीवियस ईयर में करना है। प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको ये काम करना है कि इनकम कौन करो, उस पर जो भी टीडीएस कटता है वो कटने दो, टीसीएस कटना है करने दो, आपको जब एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है तो एडवांस टैक्स पे करो। ये हमारा प्रीवियस ईयर का काम है। ये असेसमेंट ईयर में हमें इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या काम करना है कि असेसमेंट ईयर में मुझे इनकम पे टैक्स पे करना है, टैक्स पे करने के बाद मुझे रिटर्न फाइल करना है, ओके। तो रिटर्न फाइल कर दिया आपने, अलग अलग रिटर्न्स मैंने आपसे डिस्कस किए। तो वंस यू फाइल द रिटर्न, नाउ डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपने रिटर्न फाइल किया ना, तो रिटर्न का वो लोग असेसमेंट करेंगे। तो आपने जो फाइल किया हुआ रिटर्न है उसका वो लोग असेसमेंट करेंगे, और अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके ग्राउंड पे असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट दो तरीके से, दो टाइप के हो सकते हैं मेनली, कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी उसके ग्राउंड पे असेसमेंट होता है, और एक लास्ट वाला असेसमेंट सेक्शन 144 मैंने आपको बताया, बेस जजमेंट असेसमेंट। तो बेस जजमेंट असेसमेंट मीन्स व्हाट, उन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके ग्राउंड पे वो असेसमेंट करेगा। तो असेसमेंट दो तरीके, मतलब एक आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उससे भी हो सकता है, और आप बोला कि वो इनकम टैक्स रिटर्न आज नहीं फाइल कर तो हूँ असेसमेंट कर से, तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उस ग्राउंड पे असेसमेंट करेंगे, और वो असेसमेंट करके अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्ट क्या, असेसमेंट करके आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं वो चेक करेंगे। अगर सही है तो आपका असेसमेंट पहले स्टेज में ही निकल जाएगा। यहाँ दो तीन स्टेज में असेसमेंट होता है, अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो दो तीन स्टेज में असेसमेंट होता है, ओके। तो अगर आपने दिया है तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है पहले स्टेप में ही आपका असेसमेंट हो जाएगा। लेकिन सपोज आपने इंफॉर्मेशन दी है उस कुछ कंफ्यूजिंग है, डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि भाई नहीं इससे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए, तो कुछ इंफॉर्मेशन मांग के करेंगे, और कभी कभी आपको नोटिस भी भेजेंगे। तो ये सब असेसमेंट, यहाँ तीन स्टेज में असेसमेंट होते हैं। यहाँ बेस जजमेंट असेसमेंट होता है, ओके। और कभी कभी आपका देखो ये असेसमेंट हो गया, ये सब असेसमेंट हो गए, आपका असेसमेंट ईयर भी हो गया, और पीछे से 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट को पता चला कि आनो असेसमेंट થઈ ગયું છે तो सारा उल्लू बनाई गयो कि आने कहीं ना कहीं इनकम हाइड करी છે, 4 વર્ષ પછી गवर्नमेंट ने खबर पड़े। वो केस में वो लोग ये असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद, उसके 2-3 साल हो जाने के बाद भी उनको आइडिया आता है कि इसने कहीं से इनकम कमाई है लेकिन छुपाई है। तो वो केस में ये असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद उसके 2-3-7 साल तक अब से माहिती डिमांड करके असेसमेंट होगा। तो वो भी एक असेसमेंट है जिसको बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ओके। तो असेसमेंट मेनली 4-5 टाइप के हैं कि आपने रिटर्न फाइल किया है उसके ग्राउंड पे 2-3 स्टेज में असेसमेंट होगा। अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो बेस जजमेंट असेसमेंट होगा, और असेसमेंट हो जाने के बाद भी कई सालों के बाद गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपने कोई इनकम छुपाई है, वो केस में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी होगा। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज असेसमेंट और व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ असेसमेंट। देखो, तो वेरियस असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स लॉ, every taxpayer has to furnish the detail of his income टू दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कोई पण टैक्स पेयर हो उसको अपनी इनकम की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। अभी वो इंफॉर्मेशन कैसे देगा, तो वो डिटेल कैसे देता है, तो दिस डिटेल्स आर टू बी फर्निश्ड बाय फाइलिंग दी इनकम टैक्स रिटर्न। तो वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इंफॉर्मेशन देगा। वंस द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर, नेक्स्ट स्टेप is the processing of the income tax return by the income tax department। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न को वो लोग प्रोसेस करेंगे, ओके। प्रोसेस मतलब उसको चेक करेंगे, ओके। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जामाइंस द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर इट्स करेक्टनेस। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं वो चेक करते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग द रिटर्न of income filed by the income tax department is known as assessment। What is assessment? Income tax, the process of examining the income tax return by the income tax department for its correctness is known as assessment। Assessment is also called the reassessment and base judgment assessment। देखो ये assessment also includes, ये assessment के अंदर दूसरे दो assessment भी आते हैं,
कि आपने रिटर्न फाइल किया उसका असेसमेंट करेंगे, वो तो असेसमेंट है ही है, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी है और उसके ग्राउंड पे वो उनके पास जो माहिती उससे असेसमेंट करते हैं, ऐसे असेसमेंट को क्या कहा जाता है? बेस जजमेंट असेसमेंट। ये 144 वाला, ओके। और उन लोगों ने असेसमेंट कर दिया, उसके बाद आप उनको लगता है कि कसोजू रही गई फरी असेसमेंट करो, तो उसमें रीअसेसमेंट भी आता है, जो 147 वाला ये इनकम एक्सपेक्टिंग असेसमेंट। देखो, अगर अंडर द इनकम टैक्स लॉ देयर आर मेजर 4 टाइप ऑफ असेसमेंट। अंडर इनकम टैक्स एक मेजरली देखने जाए तो 4 टाइप के असेसमेंट है। वन, दैट इज द असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, इसको बोला जाता है समरी असेसमेंट विदाउट कॉलिंग दी असेसर। કે તમે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરો, તમને બોલાવે નહીં, તમારી પાસે કોઈ માહિતી નહીં માંગે, એ લોકો તમે જે માહિતી આપી છે એના ગ્રાઉન્ડ પર જ એ લોકો ચેકિંગ કરી લે છે। मतलब छोटा सा असेसमेंट होता है, यहाँ बहुत डिटेल में असेसमेंट नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज दी समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes. Yes. Yes, sir. दैट इज नोन एज समरी असेसमेंट। ओके बेटा, तो ये छोटा सा मतलब इनिशियल स्टेज पे चेक करके आपको ऑर्डर दे दिया जाता है कि भाई તમારું रिटर्न बराबर है। ओके, तो वो बोला जाता है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट के बाद एक दूसरा असेसमेंट होता है स्क्रूटिनी असेसमेंट। ये सबसे डेंजर है। स्क्रूटिनी असेसमेंट में क्या किया जाता है? आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, आपने कुछ गलत चीजें अंदर डाल रखी हो, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है, देन दे विल आस्क यू दैट यू प्रोड्यूस द प्रूफ। ओके, लाइक सपोज आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है और 80D का डिडक्शन क्लेम कर लिया, या तो फिर आपने कोई खर्चा ही नहीं किया और उसका खर्चा आपने डेबिट कर दिया पीजीबीपी में, या तो फिर आपको कोई कैपिटल गेन के लिए कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, आपने ज़्यादा एक्सपेंस डाल दिया। ओके, तो आपने कुछ खर्चे गलत डाल दिए, या तो फिर कुछ इनकम है आपने छुपाने की कोशिश की, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है, देन दे विल कॉल यू, वो आपको बुलाएंगे। ओके, एंड आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और डॉक्यूमेंट मांग के असेसमेंट होता है, आपको प्रूफ प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है, और ऐसा करके जब असेसमेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज स्क्रूटिनी असेसमेंट। इंडियाમાંથી લાખો રિટર્ન ફાઇલ થતા ને એમાંથી 10% 5% લોકોને સ્ક્રુટિની આવે, બાકી મોટા ભાગના લોકો સમરી અસેસમેન્ટમાં જેમનું અસેસમેન્ટ પૂરું થઈ જાય। जब जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं या तो फिर इनकम टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहा है और डिपार्टमेंट को लगता है, तब उनको 143 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत वो असेसमेंट में उनको लिया जाता है। ओके, फिर बेस जजमेंट असेसमेंट में क्या किया जाता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो आपको नोटिस दी जाए कि आप रिटर्न फाइल करो, आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, और सपोज वो आप नहीं करते ना, तो उनके पास जो माहिती है ना, उसके बेस पे वो असेसमेंट करके आपको सीधा ऑर्डर दे देगा, आपको इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इतनी पेनल्टी और इतनी फीस पे करनी है। ओके, तो वो असेसमेंट को कहा जाता है बेस जजमेंट असेसमेंट। एंड द लास्ट असेसमेंट इज सेक्शन 147 वाला इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। मतलब आपने रिटर्न फाइल किया है, या तो, और जब फाइल करने के बाद आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट या समरी असेसमेंट हो गया है, और या तो फिर बेस जजमेंट असेसमेंट हो गया, आपने टैक्स भी भर दिया और 2-3-4 साल के बाद गवर्नमेंट को लगता है कि भाई आने कई गफलो કર્યો છે, तो તમારું અસેસમેન્ટ ફરી કરશે કે ભાઈ you have escaped the income, so you have to again produce the documents, or you are supposed to present before the department, or if you fail then see, और आपकी एक्चुअल इनकम क्या है वो ढूंढने के लिए डिपार्टमेंट आके असेसमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ये 4 टाइप के मेन असेसमेंट है, समरी असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट, बेस जजमेंट असेसमेंट एंड द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ये 4 टाइप के असेसमेंट है। नाउ लेट अस डिस्कस। ये देखो, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या प्रोसेस करता है वो सब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने बताया कि मटेरियल डिपार्टमेंट का इंटरनल मटेरियल है, तो सी दैट वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस। हमें हमारे मास्टर्स लेवल के लिए जितना जरूरी है, जितना जानने की जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही डिस्कस में करना है। देखो, अभी तो पहला असेसमेंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द समरी असेसमेंट। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या होता है? देखो, इट इज अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 वाला असेसमेंट। तो दिस इज अ प्राइमरी असेसमेंट
and it is referred as summary assessment without calling the assessee, मतलब टैक्स पेयर को बुलाए बिना, उससे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे बिना असेसमेंट किया जाता है. दैट असेसमेंट इज नोन एज समरी असेसमेंट. ओके, सर समरी असेसमेंट में क्या किया जाता है? तो असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 इज लाइक अ प्राइमरी चेकिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम. आपने जो भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया उसका प्राइमरी चेकिंग करते हैं. एट दिस स्टेज नो डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज कैरिड ऑन. कोई डिटेल स्क्रूटिनी नहीं किया जाएगा, प्राइमरी चेकिंग किया जाएगा. एट दिस स्टेज टोटल इनकम और लॉस इज कंप्यूटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब एडजस्टमेंट. ये सब एडजस्टमेंट को देख के उसका सिर्फ इनकम कंप्यूट किया जाता है. कोई डिटेल में बहुत स्टडी नहीं किया जाता कि भाई आपकी रिटर्न में एरिथमेटिकल एरर नहीं है, मतलब कैलकुलेशन में कोई भूल तो नहीं है, वो एरिथमेटिकल लिखा जाएगा. इनकरेक्ट क्लेम तो आपने नहीं किया. इनकरेक्ट क्लेम मतलब आपने कोई खर्चा नहीं किया और वो आपने डाल दिया है. और इनकरेक्ट क्लेम कैसे किसको कहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज इनकरेक्ट क्लेम. इनकरेक्ट क्लेम कैसे आइडेंटिफाई हो जाता है, दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. तो सपोज आपके एम्प्लॉयर ने, मैंने आपको बताया था कि भाई जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं दे फाइल द रिटर्न टू देयर एम्प्लॉयर, मतलब ही हैज टू सबमिट ऑल द प्रूफ टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर विल सबमिट दैट इंफॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सपोज मैंने अपने एम्प्लॉयर को इंफॉर्मेशन दी कि भाई मैंने 25,000 रुपया की मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, 25,000 रुपया इंटरेस्ट प्रीमियम पे किया है. तो एम्प्लॉयर ने 25,000 रुपया मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. और तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि भाई मैंने 80D का डिडक्शन क्लेम करने के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम 25,000 पे किया. अभी अब मैं अपना ये एक्चुअल रिटर्न फाइल करता हूँ, उसमें मैंने 40,000 रुपया प्रीमियम दिखा है. ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी ऑलरेडी माहिती है क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने आपसे प्रूफ मांगा और प्रूफ के ग्राउंड पे उसने रिटर्न इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी है कि भाई ये हेमंत भाई है, उसने 25,000 की मेडिक्लेम पॉलिसी ली है. अभी हेमंत भाई अपना जब रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 40,000 लिखा. अभी वो जब दो फिगर मिसमैच होगी तो उनको पता चलेगा कि दिस इज दी इनवैलिड क्लेम. ओके, तो ऐसे इनवैलिड क्लेम अगर आपने किए या नहीं किए वो चेक किया जाएगा. तो सी इनकरेक्ट क्लेम, इफ such incorrect claim is appear from the information in the return. इंफॉर्मेशन आप उनके पास है और आपसे है, उसमें उनको लगता है कि कोई इनकरेक्टनेस है तो वो चेक करेंगे. और डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम, ओके, अगर आपने लाइक सपोज यू नो दैट कि सैलरी का लॉस है, सॉरी बिजनेस का लॉस है, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी, और आपने ऐसा कुछ सेट ऑफ किया है तो डिपार्टमेंट विल नॉट अलाउ यू. ओके, तो ऐसी सब बेसिक चीजें चेक की जाएगी. भाई इनकरेक्ट सेट ऑफ नहीं किया, इनकरेक्ट लॉस क्लेम. इफ द रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर सेट ऑफ the losses claim was furnishing the return beyond the due date. आपको मैंने बताया कि अगर आपने लॉस ऑफ द रिटर्न प्रीवियस ईयर का आगे के साल का टाइम पे फाइल किया है, ठीक है, तो वही आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. वो रिटर्न ऑफ लॉस पड़ा है तब मैंने बताया था कि रिटर्न अगर अपने प्रीवियस अगले अगले साल का जो लॉस है that you can carry forward to this year only if the earlier year's return is filed by you on time. Okay, अगर उसको ड्यू डेट के बाद वहां फाइल किया और यहाँ बोलते हो कि मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो सब बेसिक चीजें वो चेक की जाएगी. disallowance of the expenditure indicated in the audit report but taken into account, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में એવું લખેલું છે क्या एक्सपेंस અને ડિસઅલાઉ થશે, રિટર્નમાં તમે લીધું क्या एक्सपेंस નું मैं डिडक्शन क्लेम करूँ છું. એવી સીધી સીધી આમ જોવો ને તમને ખબર પડી જાય કે આ કંઈ ખોટું છે, એવી વસ્તુઓ અહીંયા ચેક કરવામાં આવશે. So disallowance of the deduction under section 10AA, 10L, 80LA, 80IE if the return of furnished beyond the duty. देखो આ રિટર્ન આ જે ટર્મ સેક્શન છે ને એનું ડિડક્શન પણ તમને ત્યારે જ મળે જ્યારે તમે રિટર્ન ડ્યુ ડેટમાં ફાઇલ કરી. હવે ડ્યુ ડેટ પછી રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે તો 10AA या 80IE या 80IE टू 80EIE के जितने भी डिडक्शन है तो क्लेम करना है तो रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना पड़ेगा. अभी टाइम के बाद फाइल किया है और आपने डिडक्शन क्लेम किए तो डिपार्टमेंट को तुरंत पता चल जाएगा कि ये डिडक्शंस नहीं मिलेगा. और देखो एडिशंस ऑफ इनकम अपियरिंग फ्रॉम 26 ईयर्स फ्रॉम 16 और 16 ईयर,
मतलब समझी लो कि તમને કોઈક વધારાની ઇન્કમ થાય છે, ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને ફોર્મ 16 કે તમારું 26 યર્સ, કે ફોર્મ 16 તો તમને ખબર હશે તમારા એમ્પ્લોयर તમને આપે कि भाई આ માણસે આ વર્ષમાં આટલા કમાયા. 26 ईयर्स क्या होता है, आपको जितने भी लोग पैसे देते हैं प्रीवियस ईयर में, वो लोग टीडीएस काटते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया कि भाई मैंने इसको इतना दिया है और इसमें से इतना टीडीएस काटा है. तो डिपार्टमेंट को तो ऑलरेडी पता है कि आपने पूरे साल में कितना कमाया है, क्योंकि आपका जो टीडीएस कटा है वो उसने डिपॉजिट किया है और उसको उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना टीडीएस रिटर्न में बताया भी कि भाई हेमंत भाई को मैंने 10 लाख रुपया इंटरेस्ट बैंक ने पे किया और उस पे 1 लाख रुपया टीडीएस काटा है. तो ऐसा इनकम बैंक, मेरी बैंक ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया है कि भाई हेमंत भाई ने 10 लाख रुपया ने इंटरेस्टની ઇન્કમ છે, ને હેમંત ભાઈ અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ 5000 बतावશે, तो इट विल बी मिसमैच. दे नो, दे हैव अ इंफॉर्मेशन. तो ये ऐसी सब चीजें जो बेसिक है ना, वो चेक की जाती है कि तुरंत पता चल जाएगी. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो उनके पहला तुम्हारे 26 ईयर्स के फॉर्म 16 के 16 को જોઈ જ લેવાનું 16 એ. કારણ કે ત્યાં આગળ કોઈક ઇન્ફોર્મેશન હશે, मतलब આટલી ઇન્ફોર્મેશન ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે છે. ओके, और वो इंफॉर्मेशन जैसे अभी तो वो भी आ गया है, तो मैं आपको बताता हूँ. ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, ठीक है. कैन यू सी दी स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे उन लोगों के पास पूरे आपकी सब माहिती हो जाती है और वो आपको भी पता होता है. आपकी सब माहिती उनके पास होती है. वो है साइट, जस्ट वेट. नो सी, दिस इज द वेबसाइट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है. देखो ये मेरा खुद का ही है. ओके, तो देखो मेरा लास्ट ईयर का रिटर्न मैंने फाइल किया होगा, उसका मुझे गवर्नमेंट से 15,567 रुपये रिफंड देने अभी बाकी है. ओके, तो देखो रिटर्न मेरा प्रोसेस हो गया है. यहाँ मुझे सब स्टेज भी दिखेंगे कहाँ कहाँ पे तो मैंने रिटर्न फाइल किया है. वो रिटर्न वेरीफाई मैंने ये तारीख को किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये तारीख को उसको प्रोसेस किया और प्रोसेसन कंप्लीट हो गया. सिर्फ मेरे को रिफंड मिलना बाकी है, ठीक है. अभी आप देखो कि गवर्नमेंट के पास है ना आपकी सब इंफॉर्मेशन होती है. सपोज समझ लो कि ये कैसे पता चलती है. पहले मैं आपको 26 ईयर्स सिखाता हूँ कि ये जो मुझे पूरे साल में अलग अलग लोग जो पेमेंट करते हैं. ओके, जनरली आई एम हैविंग अ 2 सोर्स ऑफ इनकम. ओके, फ्रॉम वेयर आई एम अर्निंग. वैसे तो मेरा बिजनेस का भी इनकम है, लेकिन वो मेरे पार्टनरशिप फर्म से मुझे मिलता है. तो पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट मिलता है दैट इज एग्जाम. ओके, तो बट उसके जो जिस पे मेरा टैक्स कटता है, टीडीएस कटता है, ऐसी 2 इनकम है. और देखो ये मुझे देखनी है कि गवर्नमेंट ने मारी कई कई इनकम खबर છે જો આ મારું 26 ईयर्स અહીંયાથી મને દેખાશે કે ભાઈ ये मेरा 26 ईयर्स ये क्या है. यहाँ से ये सपोज नेक्स्ट असेसमेंट ईयर कौन सा आने वाला है, 24-25 असेसमेंट ईयर. क्योंकि अभी असेसमेंट आयो नहीं, એનો मतलब પ્રીવિયસ ईयर 23-24 में मैं
કઈ કઈ જગ્યાએથી કેટલી ઇન્કમ રિસીવ કરી છે આ ડિપાર્ટમેન્ટને આ લોકો આપી જ દે જ્યારે પણ રિટર્ન ફાઇલ કરતા હોય, સોરી એ લોકો એમનું ટીડીએસ ફાઇલ કરે ને ત્યારે જણાવી જ દેજો અહીંયાથી આ જો 24-25નું અસેસમેન્ટ એટલે 23-24માં સપોઝ આ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાંથી મને આ 1,08,833 રૂપિયા વ્યાજ મળ્યું છે. હવે આ ઇન્ફોર્મેશન ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને ઓલરેડી મળી ગઈ છે, એના પર એ લોકોએ 10,000 मारो टीडीएस था, यू कैन सी। ओके, नाउ सी सपोज मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा 24-25 का और उसके अंदर मैं अपनी इंटरेस्ट की इनकम 1 लाख की जगह 10,000 दिखाता, ठीक है, तो उन लोगों को तुरंत पता चल जाएगा ये समरी असेसमेंट नहीं है, तभी तो एआई बेस्ड पूरी सिस्टम है, तो तुरंत आइडेंटिफाई करके देगा कि ये हेमंत भाई ने इतना कम इंटरेस्ट दिखा है। सपोज मुझे रजिस्ट्रार एमएसयू के रजिस्ट्रार से 5 लाख रुपया मिला है, तो अगर मुझे पता है कि भाई मेरे रजिस्ट्रार ने मुझे 5 लाख रुपया दिया है, तो ये 5 लाख के सामने मेरा 58,000 टीडीएस काटा है। अभी ये मैं अपनी सैलरी इनकम अभी तो पूरा साल कंप्लीट होने के का बाकी है, ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा इनकम हुई है, लेकिन उसने अभी टीडीएस काट के अपना टीडीएस रिटर्न नहीं भरा होगा, इसीलिए ये 5 लाख दिखा रहा है, ठीक है। तो जब भी वो पूरा साल कंप्लीट होगा 31 मार्च तक यहाँ ये 12-15 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा ये इसकी जगह, और मैं उसको बताता हूँ कि मेरी सैलरी इनकम से 4 लाख है, तो वो मिसमैच होगा तो तुरंत वो समरी असेसमेंट में पकड़ा जाएगा। जैसे ये एक्सेल इंडस्ट्री से मुझे कुछ डिविडेंड मिला है तो उनको पता चल जाएगा। नॉट ओनली दैट, यू कैन सी हियर, ये तो आपको मैंने 26 एएस लिखा है, आपने कहाँ कहाँ क्या ट्रांजेक्शन का किया, अभी ये एआईएस करके आ गया। एआईएस के अंदर आप जो जो ट्रांजेक्शन करते हो, जहाँ जहाँ पे आपका पान देते हो ना, तो पूरा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। देखो ये आपका एआईएस पीआईएस आप देखोगे तो ये मैंने पूरे साल के अंदर क्या क्या किया है, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास चला जाता है। देखो तो भाई मुझे देखो सैलरी से 1 लाख, ये कौन से साल का है, ये करंट ईयर का, मैं कहाँ कहाँ से मुझे मिलता है ना पैसा, वो इंफॉर्मेशन अभी टैक्स तो मैं नेक्स्ट ईयर भरने वाला हूँ, लेकिन देखो मुझे 10 लाख सैलरी मिली है, एक 152 रुपया डिविडेंड मिला है, इंटरेस्ट ये मिला है, 157 का दूसरा इंटरेस्ट मिला है, बिजनेस में से 22,000 रिसीव हुई है। तो ये जो इनकम होती है ना, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इन लोगों के पास वो पहुंच ही जाती है कि ये मेरा एम्प्लॉयर मेरे वो इंटीमेट कर देगा कि भाई हेमंत भाई ने आटली सैलरी आपी, जे कंपनी મને ડિવિડન્ડ આપ્યું એ જણાવી દેશે, ઇન્ટરેસ્ટ જે બેંકે મને ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યું, આ બધી વસ્તુ આ લોકો જણાવી દે છે પણ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अभी ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास है। अभी आप किसी का इनकम टैक्स रिटर्न भरने बैठे और इससे कम इनकम बताओगे ना, तो तुरंत समरी असेसमेंट में से आप स्क्रूटिनी में चले जाओगे कि आपने कुछ गलत बताया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल हो गया अभी। નાઉએડેઝ ઓલ યોર ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ વિથ, देखो આ સેલેરી હું કેટલી કમાઉં છું, મને કેટલું વ્યાજ મળે છે, એ ઇન્ફોર્મેશન ઓટોમેટિકલી इट इज रीचेस टू देम, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंच जाती है। तो देखो अभी नाउएडेज इफ यू वांट टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, देखो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे फाइल होता है। तो किसी का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है बहुत सिंपल है, ITR 1 अगर किसी का फाइल करना है बहुत सिंपल है। देखो सपोज ये साल का तो मेरा भर गया है, लेकिन यहाँ से ही आपको सिर्फ क्या करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, तो टू सिलेक्ट द मोड, ऑनलाइन मोड, यहाँ से सिलेक्ट करना है कौन से असेसमेंट ईयर के लिए फाइल करना है। तभी आप 23-24 के लिए ही फाइल कर सकते हो। यहाँ से आप ऑनलाइन सिलेक्ट करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो यहाँ तो मेरा क्या है कि मेरा ऑलरेडी रिटर्न फाइल हो गया है, ओके, बट सी यहाँ पे मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके सब इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक कौन है, तो भाई इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ से कंटिन्यू करो, ओके। यहाँ से आपको कौन सा फॉर्म लागू पड़ेगा, आपको मैंने कल बताया ITR 1 को ITR 7, तो तुम्हें कौन सा इंडिविजुअल छो, ओके, जिसकी 50 लाख से कम इनकम है तो ITR 1 आएगा। फिर इंडिविजुअल या HUF हो, 50 लाख से ज़्यादा इनकम, या तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या तो फिर अदर सोर्सेज का लॉस है, ITR 2 आएगा। इंडिविजुअल HUF जिसको बिजनेस इनकम है ITR 3 आएगा। सरल और सुगम अगर आपको फाइल करना है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, उसके लिए ITR 4 आएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल के केस में 5, 6, 7 मुझे लागू ही नहीं पड़ते,
तो देखिए इसने सिस्टम ने ही ऑटोमेटिकली उसको डीएक्टिवेट कर दिया। सपोज मुझे 1 फाइल करना है तो मैं यहाँ 1 पे जा सकता हूँ, प्रोसीड विद ITR 1 ऐसे करके कुछ 5 मिनट से कम टाइम लगता है। अभी मैं भर नहीं पाऊंगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, तो यहाँ से देखो मेरा ऑलरेडी भर दिया गया है और देखो किसको कौन सा फॉर्म लागू पड़ता है वो भी यहाँ लिख के आता है कि फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसको ये रिटर्न लागू पड़ता है, ऐसा आ जाता है। देखो लेट गेट स्टार्टेड करके आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि भाई क्यों आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो मैंने आपको 139 सबसेक्शन 1 पढ़ा है कि भाई मेरी इनकम बेसिक लिमिट से ज़्यादा है, या तो फिर मेरा फॉरेन ट्रैवल का 2 लाख से ज़्यादा खर्चा है इसीलिए मैं फाइल कर सकता हूँ, या तो फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा इसीलिए मैं फाइल करता हूँ। ओके, तो सपोज मैंने ये चूज किया है कि भाई एज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न एज पर दी अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब, तो इसलिए मैं फाइल करता हूँ। तो आपको रीजन भी बताना पड़ता है क्यों फाइल करते हो। ओके, ऐसे करके मैं फाइल करूंगा तो वो मुझे पूछेंगे कि भाई कौन कौन से सोर्सेज से इनकम, ठीक है। यू कैन सी हियर, देखो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको भरना होता है। तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर देखो यहाँ आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है वो आ जाएगी। देखो यू कैन सी आई हैव नॉट फील्ड, पर ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सब कुछ भर के ही आ जाती है। तो मुझे क्या करना है, एक एक आइटम पे क्लिक करते जाना है और उसको वेरीफाई करके ओके करता जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये अभी मैं करूँगा ना तो मेरा जो फाइल किया हुआ रिटर्न है ना वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए आई एम जस्ट शोइंग कि ये कितना सिंपल सा है। यहाँ से मेरी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी सब भर के ही आया। देखो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। मेरा बैंक अकाउंट नंबर, मेरा देखो मैं कौन सा टाइप का रिटर्न, मेरा एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ये सब करके देखो मेरा बैंक अकाउंट नंबर भी उनके पास होता है, सब कुछ होता है। यहाँ जाके मैं कंफर्म करूंगा ना तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक ग्रीन टिक मार्क आ जाएगा कि ये मेरा हो गया। तो ऐसे करके एक एक चीज सब कुछ भर के ही आ जाएगा। आपको यहाँ एक एक करके सबको कंफर्म करना है और लास्ट में प्रोसीड करके सबमिट करना है। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत सिंपल है। ओके, क्योंकि व्हेन इट इज रिलेटेड, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा आपको क्योंकि आई हैव ऑलरेडी फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। बट जस्ट वांट टू शो यू द इनकम टैक्स वेबसाइट। और हम डिस्कस कर रहे थे क्या कि वी वर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो इनके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। आपको आपने देखा, मैं आप बोलता हूँ ऐसा नहीं, इंफॉर्मेशन आपको आपकी क्या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है दैट आल्सो यू कैन सी फ्रॉम द AIS सेक्शन और फ्रॉम द 26 AS सेक्शन। तो यहाँ पे आप देखो, और वहाँ पे उन लोगों के पास कुछ है और आपने उससे कम दिखा है तो वो आपको ये समरी असेसमेंट में पकड़ लेंगे। देखो एडिशन ऑफ द इनकम अपियरिंग इन 26 years, मतलब તમે તો ઇન્કમ 26 years કે ફોર્મ 16 માં વધારે દેખાય છે and that you have not considered. Okay, now see however no adjustment shall be made. આમાં દેખાય છે કે તમારી ઇન્કમમાં આટલું એડિશન થયું છે તો તમે એવું કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું નથી। ઓકે, देन आप ये आया 2018-19 के बाद कि भाई ये AIS TS तब से ही आया। उनको लगता है कि भाई તમને આટલી ઇન્કમ દે છે તમે એનું કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ કે કોઈ ઇમ્પેક્ટ નથી આપી। तो ये सब चीज़ है कि अगर आपकी कोई एरिथमेटिकल एरर है या तो फिर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम कर लिया। इनकरेक्ट क्लेम आपको मैंने बताया कि तुम्हारे एम्प्लॉयर ने कई भी उसमें 32,000 મેડિક્લેમના ભર્યા છે ને અહીંયા તમે 40,000નો ક્લેમ કરશો તો એમની सी दे नो दैट कि आपने कितना क्लेम है, आपके पॉलिसी का रिसिप्ट आपने आपके एम्प्लॉयर को दिया और उसमें इंटीमेट की कर रखा है। अगर आप कम बताओगे तो इनकरेक्ट क्लेम कहा जाएगा। या तो फिर देखो लॉस का रिटर्न आपको टाइम पे नहीं फाइल किया और लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, या तो फिर कोई एक्सपेंडिचर ऑडिट रिपोर्ट में बोला है कि डिसअलाउड है और आपने उसको उसका डिडक्शन लिया है, या तो फिर ये 10A API ये सब सेक्शन का डिडक्शन लेने के लिए टाइमली रिटर्न फाइल करना है। आपने डिडक्शन क्लेम किया लेकिन टाइमली रिटर्न नहीं फाइल किया, ड्यू डेट के बाद फाइल किया, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटराइज AI सिस्टम है तो वही ट्रैक करके उनको बता देगी कि आनी इनकम टैक्स रिटर्न में આટલી ડિસ્ક્રિપન્સીસ છે ને આ જે શોધવાનું અસેસમેન્ટ છે ધેટ અસેસમેન્ટ ઇઝ નોન એઝ અ સમરી અસેસમેન્ટ। હાવેવર देखो
નો સચ એડજસ્ટમેન્ટ શેલ બી મેડ અનલેસ એન ઇન્ટિમેશન ઇઝ ગિવન ટુ ધી એસએસસી. એટલે આમાં કોઈ પણ ડિસઅલાવન્સ કે આવું કંઈ પણ હશે ને તો તમને એ લોકો ઇન્ટિમેટ કરશે કે તમારા રિટર્નમાં આટલી બધી ડિસ્ક્રિપન્સીસ જોવા મળી. ઓકે, તો તમે એનું જસ્ટિફિકેશન આપો. बट द रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, तो आप तुम्हारे ऑनलाइन જ रिस्पॉन्स આપવાનો હોય છે. अभी मैंने उसको लॉग आउट नहीं लॉग आउट, देखो यहाँ पे ऐसा कोई नोटिस आएगा ना, तो आपको यहाँ ई प्रोसीडिंग में जाके आपको कोई प्रोसीडिंग होगी तो यहाँ दिखेगी कि आपको दिया जाएगा कि તમે આ રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે એની સામે આ પ્રોસીડિંગ છે. તો અહીંયા જઈને તમારે જવાબ આપવાનો कि भाई तो यहाँ पे जाके आपको दिखा देना है कि भाई वो बताएगा आपके रिटर्न में डिस्क्रिपेंसी आई, तो यहाँ पे भी जाके आप रिप्लाई कर दो कि नहीं दिस इज राइट. अगर आपको प्रूफ देना है तो यहाँ पे ही आप प्रूफ भी दे सकते हैं. ठीक है, तो पहले तो सब कुछ ऑटोमेटिक ही यहाँ पे ही कंप्यूटर से ही हो जाता है. ई प्रोसीडिंग सेक्शन में जाके या तो फिर पेंडिंग नोटिस के सेक्शन में जाके, ओके, या कंप्लायंस पोर्टल पे भी जाके ये यहाँ पे ही आप आपका रिप्लाई ऑनलाइन ही दे सकते हो. ठीक है, तो लेकिन वो आपको इंटीमेट करेंगे मेल से, और देन आफ्टर दे विल आस्क यू दैट यू सबमिट योर रिस्पॉन्स. वो बोलेंगे कि भाई we have found in your return that you have claimed the deduction under section 80D for rupees 40,000. However, your employer has reported 25,000. Okay, whether this 40,000 is correct? If you say yes, I have paid another 15,000 afterwards. Okay, and this is the proof, अटैच कर दो तो आपका वो असेसमेंट वो कंप्लीट कर देगा. अगर आप नहीं कर पाए तो आपका रिटर्न को ले जाएगा स्क्रूटिनी असेसमेंट में. ठीक है, तो दे विल आस्क यू. However, such adjustments shall be made. No such adjustments shall be made unless the assessee of such adjustment either in a writing or electronic mode. मतलब वो आपको writing और electronic mode में intimation देगा. But the response is received from the assessee if any is considered before making the adjustment. तो पहले आपको intimate करेगा, आपसे response मांगेगा और response को consider करेगा. Then within 30, देखो अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या होगा? इन केस when no response is received within 30 days of such intimation, such adjustment shall be made. એટલે પહેલા તમને એવું કહેવામાં આવશે કે તમે આ મિસ્ટેક છે તમારા રિટર્ન. મિસ્ટેક मतलब we have found in the assessment that this is the discrepancy. So you can give your response. सपोज आप 30 दिन में रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो वो लोग एडजस्टमेंट कर देंगे. लाइक सपोज उन्होंने ढूंढा ऐसे कि તમે તમારું ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ટાઈમ પર નથી ફાઇલ કર્યું, તે છતાં પણ ગયા વર્ષનો લોસ તમે સેટઅપ કર્યો છે, તો તમને કહેશે કે તમારો રિસ્પોન્સ આપો. સપોઝ ઇફ યુ આર એબલ ટુ પ્રૂવ કે ભાઈ ઓન ધ લાસ્ટ ડે ધ બેંક વોઝ ક્લોઝ એન્ડ ધેટ્સ વાય આઈ ફાઇલ ધ રિટર્ન ઓન ધ નેક્સ્ટ ડે એન્ડ યુ શુડ કન્સિડર, તો એ તમારો લોસને અલાઉ કરી શકે. સપોઝ તમે રિસ્પોન્સ જ ના આપ્યો તો ઓન ધેટ ડે, then in that case they will disallow that adjustment of loss. Okay, તો પહેલા તમને એક રિસ્પોન્સ આપશે અને જો તમે ટાઈમલી રિસ્પોન્સ આપી દો તો એ તમારો રિસ્પોન્સ કન્સિડર કરીને એડજસ્ટમેન્ટ કરશે. જો તમે નહીં આપો તો એને કન્સિડર કર્યા વગર કરશે. ओके, तो देखो ये इनकरेक्ट क्लेम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर आपने इनकरेक्ट क्लेम कोई जगह पे देखा कि भाई अगर आपने इनकरेक्ट क्लेम किया है तो वो स्क्रूटिनी समरी असेसमेंट में पकड़ लेगा. तो इनकरेक्ट क्लेम किसको कहते हैं? देखो इनकरेक्ट क्लेम का डेफिनेशन दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ an incorrect claim appearance for the information in the return means the claim on the basis of entry in the return of which inconsistent with the other entry the same or some other item of such return. मतलब તમે સમજી લો કે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન તમે આપી છે, it is not consistent with other entry. जैसे आपको मैंने ये एग्जांपल दिया कि 40,000 रुपया में ETD નું डिडक्शन क्लेम करी. ओके, एंड मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला है कि भाई 25,000 का ही मेरा पॉलिसी है, तो उसने 25 रिपोर्ट किया, तो ये दो इनकंसिस्टेंट है. ओके, तो एक एंट्री को देख के ही पता चले कि भाई ना कहीं खोटू. ओके, या तो फिर सपोज समझ लो कि आपने कोई ऐसा एडजस्टमेंट किया है जो उनसे सीधा पता चले. लाइक सपोज समझी लो कि તમે HRA છે, હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ, એનું સેલેરીમાં ડિડક્શન લીધું. ઓકે, and on the other hand you are claiming that you are having the you are claiming that you have paid the rent also. Okay, એટલે 80 ડબલ જી માં એક ડિડક્શન મળે. તો 80 કાં તો તમે રેન્ટનો ખર્ચો કરો એનું ડિડક્શન મળે, કાં તો HRA નું ડિડક્શન મળે. હવે સપોઝ તમે બેવ ડિડક્શન સાથે લો છો, ઇટ ઇઝ ઇનકન્સિસ્ટન્ટ.
ઓકે, મતલબ ઘણા બધા ડિડક્શન્સ એવા છે કે તમને બેમાંથી એક જ વસ્તુ મળે. लाइक सपोज मैंने आपको बताया कि भाई आप 35 ईडी का डिडक्शन ले सकते हो या तो फिर 80 आईए का डिडक्शन, ये वाला 80 आईए है इसका डिडक्शन ले सकते हो या तो फिर 35 ईडी का ले सकते हो. आपने 35 ईडी का भी डिडक्शन क्लेम किया है और 80 आईए का भी लिया है, तो द इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट विथ ईच अदर. ओके, तो ऐसी ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो ऐसे ट्रांजेक्शन कहते हैं इन it is known as incorrect claim. Okay, and respect of which the information required to be furnished under the act and such entry has not been furnished. अगर कोई information रिटर्न में તમારે આપવી જોતી હતી એક્ટ પ્રમાણે એન્ટ્રી નથી આપી તો પણ એ ઇનકન્સિસ્ટન્ટ એને આપણે શું કહીશું, વી કેન ઇનકરેક્ટ ક્લેમ આપણે કહી શકીએ. or in respect of the deduction where the deduction exceeds the specified statutory limit, like suppose 80C में आपको 1,50,000 का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है और आपने एक 60 का लिया है, હવે તો પોસિબલ જ નથી, સિસ્ટમ તમને એક 50 ની ઉપર ડિડક્શન લેવા જ નહીં દે. સપોઝ કોઈ ડિડક્શન તમે કોઈ લિમિટની બહાર લઈ લીધું છે, રેશિયોની બહાર લીધું છે, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇનકન્સિસ્ટન્ટ ક્લેમ, સોરી ઇનકરેક્ટ ક્લેમ. તો આવા ઇનકરેક્ટ ક્લેમને શોધવાનું કામ આ સમરી અસેસમેન્ટમાં થશે. समरी असेसमेंट में क्या किया जाता है, ऐसी चीजें ढूंढी जाती है कि जो प्राइमरी તમે રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે એને જોઈને જ, અને હવે તો શું કરે છે એઆઈ સિસ્ટમ જ આખું ઓટોમેટિકલી તમારું સ્ટ્રેચ કરી કાઢે કે આમાં આટલી ઇનકન્સિસ્ટન્સી एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल, वो सिस्टम ही आपको ईमेल कर देगी ये समरी असेसमेंट है. देखो अभी समरी असेसमेंट में क्या होता है, आपको एक नोटिस मतलब एक इंटीमेशन आता है कि आपके रिटर्न में इतने इतने डिफेक्ट्स है. डिफेक्ट्स मतलब डिस्क्रिपेंसीज है. तो उसके बाद असेसमेंट में क्या किया जाएगा, तो देखो प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट अंडर 143 सबसेक्शन 1, आफ्टर करेक्टिंग द अरिथमेटिकल एरर और क्लेम एज डिस्कस्ड अबाउट, the tax and interest fee if any shall be computed on the basis of existing income. એટલે લોકો શું કરશે કે ભાઈ તમારા જે કંઈ પણ એડજસ્ટમેન્ટ છે એડજસ્ટમેન્ટ એ લોકો કરી દેશે, પછી તમારો નવો ટેક્સ અને એના પર કોઈ વ્યાજ ભરવાનો આવશે તો એ ગણી લેશે, અને પછી સમ પેએબલ or refund will be intimated to the assessee. assessee ને જાણ કરવામાં આવશે કે આટલો બીજો ટેક્સ ભરવાનો થાય છે તો પછી તને આટલા રૂપિયા રિફંડ મળે છે. देखो, an intimation shall be prepared and generated and sent to the taxpayer, okay, and determined that to be payable by a refund due to taxpayer. देख मतलब उसको इंटीमेशन दे दिया जाएगा, तो इंटीमेशन shall be prepared or generated and sent to the taxpayer specifying the sum determined payable by him. ટેક્સ ગણવામાં આવશે, પછી ટેક્સ કેટલો ભરવાનો થાય છે એની એને જાણ કરવામાં આવશે. And intimation is also sent in case the loss declared in the return of income is adjusted but no interest is payable. अगर कोई लॉस તમારો છે એને એડજસ્ટ કર્યો હોય ને એના પર કદાચ ઇન્ટરેસ્ટ કે ટેક્સ પેએબલ હશે તો પણ એને જાણ કરવામાં આવશે. And acknowledgement of the return of income shall be deemed to be intimated in case no sum is payable by him. સપોઝ સમજી લો કે તમારું રિટર્ન એ લોકોએ પ્રોસેસ કરી દીધું કશું જ એડજસ્ટમેન્ટ કર્યા વગર, તો એના કેસમાં તમારું જે એકનોલેજમેન્ટ તમને મળે ને રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું, એને જ તમારું ઇન્ટિમેશન મળી ગયું એવું કહેવાશે. ओके, देखो ये आपको मैंने 234 ऐप पढ़ाया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है. अगर रिटर्न आप टाइम पे नहीं फाइल करोगे तो क्या होगा, तो 5 लाख से कम इनकम है दिसंबर से पहले पे करोगे, फाइल करोगे तो आपको 5,000 पेनल्टी देगी. दिसंबर के बाद वाला तो अभी पॉसिबल ही नहीं, लेकिन अगर दिसंबर के बाद फाइल किया तो 10,000 पेनल्टी. और अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, 1,000, तो हमने देखा. तो ये असेसमेंट डिपार्टमेंट कितने टाइम में कंप्लीट कर देता है. तो असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 मतलब समरी असेसमेंट कैन बी मेड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड के, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर है, ओके, असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट विद 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर मतलब असेसमेंट ईयर. सपोज ये मेरा असेसमेंट ईयर है 23-24, अब खत्म होगा 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, उसके 9 मंथ के अंदर मेरा असेसमेंट हो जाता है. देखो जब असेसमेंट होता है ना तो आपको ये लोग इंटीमेट भी करते हैं. इंटीमेशन आता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो इंटीमेशन भी आपको बताता है. वो लोग आपको समरी असेसमेंट का कैसा इंटीमेशन आता है, डेट ऑल्सो आई एम शोइंग यू.
आपको पता चलेगा कि जैसे किसी का असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो असेसमेंट कंप्लीट होने पे कैसा इंटीमेशन आता है, दैट आई एम शोइंग इन माय ईमेल आईडी। मेरे मेल से काफ़ी लोगों के रिटर्न फाइल होते हैं, तो मिलता है तो मैं आपको बता दूँ। देखो ये ITR इंटीमेशन जो आते हैं ना, वो योर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड एंड देयर इज नो पेमेंट ड्यू, ऐसा देखो ये किसी का मैंने रिटर्न फाइल किया होगा, इसका इंटीमेशन आता है। मतलब देखो इन दैट केस दिस एक्नॉलेजमेंट इज, देखो ये कौन सा है, समरी इंटीमेशन अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, मतलब ये समरी असेसमेंट होता है। ठीक है, मतलब सिस्टम ही अपना असेसमेंट कर देती है। अगर कोई इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हो तो एडजस्टमेंट का भी इंटीमेशन आता है कि एडजस्टमेंट आपको ये करना है। ठीक है, देखो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये है देखो, 143(1) का जो डिटेल्स ऑफ रिफंड अगेंस्ट डिमांड, आपका जो डिमांड, आपका जो प्रीवियस ईयर का कुछ टैक्सेस बाकी है उसके सामने आपका जो रिफंड ड्यू है उसको एडजस्ट किया जाता है, ऐसा एक नोटिस आता है। ठीक है, तो ये 143(1) के ही सब इंटीमेशन भी वो लोग भेजते हैं। अल्टीमेटली आपको इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि समरी असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 9 मंथ में कंप्लीट तब डिपार्टमेंट को कंप्लीट करना होता है। ओके, इसमें क्या किया जाता है, तो सब बेसिक चीज़ें चेक की जाती है, उसके बेस पे आपको इंटीमेशन दिया जाएगा और ये इंटीमेशन का आप रिस्पॉन्स करते हो, उसके बेस पे आपका इनकम को रिकैलकुलेट किया जाएगा अगर ज़रूरत है तो। नहीं है तो आपको जो भी एक्नॉलेजमेंट मिला वही आपका रिटर्न असेस हो गया ऐसा समझ लेगा। अगर एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्टमेंट करके आपको टैक्स भरने का बोलेंगे और वो टैक्स आपको भर देना है। दिस इज कॉल्ड असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, और ये असेसमेंट को हम क्या कहेंगे, इज नोन एज समरी असेसमेंट। ठीक है, नाउ एक दूसरे टाइप का असेसमेंट है दैट इज नोन एज स्क्रूटिनी असेसमेंट। देखो यहाँ से दूसरा असेसमेंट होता है, असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी असेसमेंट। स्क्रूटिनी असेसमेंट किसको कहते हैं, दिस इज अ डिटेल असेसमेंट। दिस इज अ डिटेल असेसमेंट। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा? हेलो, यस Yes. सर। Yes, sir. तो दिस इज अ डिटेल असेसमेंट एंड इट इज रिफर्ड एज अ स्क्रूटिनी असेसमेंट। देखो जब डिटेल में असेसमेंट आपने रिटर्न फाइल किया और एकदम डिटेल जो बेसिक चेकिंग होता है वो आपका समरी असेसमेंट है। अगर उनको ऐसा लगा कि भाई इसमें कुछ घपला है तो वो केस में आप वो लोग डिटेल में जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि भाई जितने लोग फाइल करते हैं उसमें से 10-15% परसेंटेज लोगों को का स्क्रूटिनी होती है, अदरवाइज बाकी सब समरी में निकल जाते हैं। So this is the detail assessment referred as to as scrutiny assessment. At this stage, detailed scrutiny of the return will be carried out to confirm the correctness and genuineness of the various claims and deduction. तो आपने जो भी डिडक्शन की क्लेम की है, जो भी इनकम बताई, सबकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए एकदम डिटेल में स्टडी किया जाएगा। मेड बाय द टैक्स पेयर इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो असेसी ने जो भी फाइल किया उसकी एकदम डिटेल में स्टडी किया जाएगा, उससे प्रूफ मांगे जाएंगे और उसकी करेक्टनेस चेक की जाएगी। और ऐसे जब असेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी असेसमेंट।
सबका नहीं होता है, कब करता है असेसमेंट, देखो इसका स्कोप बताया कि objective of this scrutiny assessment is to confirm that taxpayer has not understand the income tax or has computed the excessive loss or has underpaid the tax. असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई इनकम टैक्स को समझा ही नहीं है, या तो फिर उसने एक्सेस लॉस बता दिया है, या तो फिर अंडर इनकम टैक्स मतलब अंडर ही हैज अंडरपेड द टैक्स मतलब कम टैक्स पे किया है, ऐसा लगता है, तब वो केस में डिटेल स्टडी की जाती है और उसको स्क्रूटिनी असेसमेंट करते हैं. टू कंफर्म अबाउट असेसिंग ऑफिसर कैरीज आउट द डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम and will satisfy himself regarding the various claims or deduction made by the taxpayer in the return of income. तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है, सभी चीजें को कलेक्ट करके, सबके प्रूफ कलेक्ट करके, वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता ही विल आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ही विल कंडक्ट द असेसमेंट. ओके, दैट इज नोन. और उसमें वो केस में अगर आप फेल हुए कुछ प्रूफ देने के लिए, या तो वो केस में वो एक्सपेंस जो है उसको डिसअलाउ भी कर सकता है. आपने कोई इनकम उसको पता है, आपने उसका प्रूफ नहीं दे पाया, तो वो इनकम पे टैक्स भी लगा सकता है. देखो, इफ असेसिंग ऑफिसर कंसीडर्ड दैट, देखो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है. If the assessing officer considered that it is necessary or expedient to ensure that the taxpayer has not understand the income, has not ensure that the taxpayer has not understated the income or has not computed the excessive loss or has not underpaid the tax, then he will serve the taxpayer a notice. Okay. To notice requiring him to attend his office and produce the cost to be produced or cost to be produced any evidence which taxpayer may rely in support of his return. अगर असेसिंग ऑफिसर को अपने आप को एंश्योर करना है कि આ માણસે ઓછી ઇન્કમ નથી बताई, he has not understated the income, he has not, या तो फिर एक्सेसिव लॉस इसने नहीं बताया है, या तो फिर उसने कम टैक्स नहीं पे किया है, ऐसा असेसिंग ऑफिसर अपने आप के लिए एंश्योर करना चाहता है. उसको मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो उसको ऐसा लगता है कि इसने कम टैक्स पे किया, या तो इसने ज्यादा लॉसेस दिखाए, या तो इसने अंडरस्टेटमेंट ऑफ इनकम किया है, ऐसा असेसिंग ऑफिसर को लगता है. लेकिन फिर भी उसको एंश्योर करना है कि आने આવું નથી કર્યું, તો એને એ કરવું હોય તો શું કરવું પડશે, he will serve the notice to the assessee and ask the assessee to attend his office and produce the proofs to support his return. So देखो, to carry out the assessment under section 143 subsection 3, assessing officer shall serve a such notice in accordance with the section 143 subsection 2. assessing officer notice આપશે. નોટિસ કેવી રીતે, કેટલા ટાઈમમાં આપી શકે? નોટિસ should be served within the period of 3 months from the end of the financial year with the return is filed. मतलब અસેસમેન્ટ યર પૂરું થાય તો 3 મહિના સુધી એ તમને નોટિસ આપી શકે. અસેસમેન્ટ યર સપોઝ માર્ચમાં પૂરું થયું તો એપ્રિલ, મે અને જૂન સુધીમાં તમને નોટિસ આવી શકે. ઓકે, એકવાર જૂન પતી ગયો પછી તમને સ્ક્રુટિનીની નોટિસ ના આવે. અસેસમેન્ટ યર પછીનો જૂન. ઓકે. Taxpayer or his representative will appear before the assessing officer and will place his argument supporting evidence એટલે માગશે એ document assessing officer ને assessee આપશે on various matters issued required by the assessing officer. And after hearing and verifying the such evidence and taking account such particulars as taxpayer may produce and other evidence as assessing officer may require, on such point, after taking into account all the relevant material which he has gathered, assessing officer shall, by an order in the writing, make the assessment of total income or loss to determine the sum payable or refund, if any, a refund of any amount due to him on the basis of such assessment. એટલે શું કરશે, તમને કહેશે બધા ડોક્યુમેન્ટ આપો, જે સેટિસ્ફાઈ થશે नहीं સેટિસ્ફાઈ થાય, બેમાંથી એક પોસિબિલિટી છે એટલે એના પાસે જે કંઈ પણ ફેક્ટ છે એના આધારે તમારી ઇન્કમ ફરી ગણશે, એના પર ફરી ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરશે અને એના પછી ઓર્ડર આપશે કે તમે આટલો ટેક્સ ભર્યો તો પણ તમારે આટલા એક્સપેન્સીસ ડિસઅલાઉ થયા,
આટલી ઇન્કમ તમે છુપાઈ હતી, હવે એને હું એના પર ટેક્સ લગાડું છું, તો એ કરીને હવે તમારે આટલો ટેક્સ ભરવો પડશે, કા પછી તમને આટલું રિફंड મળશે। ओके, ऐसा आपको एक ऑर्डर इश्यू करेगा, मतलब वो आपको बुला के आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। ओके, तो मतलब साहब બોલાવશે, તમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ માંગશે, મને પ્રૂફ આપશે, તો એવું નહીં કરે કે ભાઈ લે 50,000 પૂરું करने અહીંયા मैटर। ओके, तो ऐसा पहले होता था। तो अल्टीमेटली देयर वाज अ लॉस टू दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, उसने फेसलेस कर दिया, वो आपको बुलाएगा नहीं, वो सब फेसलेस સામે વાળો હશે, તમે પણ હશો, કદાચ તમે એની જોડે કમ્યુનિકેટ પણ કરતા હશો, તમે એનો ફેસ નહીં જોઈ શકો, એ તમારો ફેસ નહીં જોઈ શકે, તમારા વચ્ચે કમ્યુનિકેશન થશે પણ તમે કોની જોડે વાત કરો છો એ ખબર નહીં જાય। नाउ देयर इज अ फेसलेस असेसमेंट, तो आपको सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपको बोलेगा ये प्रूफ दे दो, तो आप ऑनलाइन स्कैन करके वो प्रूफ दे दो। ठीक है। वो कौन बात कर रहा है, वो ऑफिसर का नाम आपको पता नहीं होगा। ठीक है, और वो किससे बात कर रहा है वो आपको नहीं जानता होगा। ठीक है, उसको आपके पैन के अलावा कुछ डिटेल उसके पास नहीं होगी, आपका एड्रेस क्या है, कौन हो, आपका फोन नंबर, वो डिटेल उसके पास नहीं होगी। देखो, सो अभी फेसलेस असेसमेंट होता है। तो फेसलेस असेसमेंट मीन्स व्हाट, प्रोसीडिंग इज कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इन ई प्रोसीडिंग एंड फैसिलिटी थ्रू असेस इज रजिस्टर्ड अकाउंट। मतलब देखो, अभी आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था मेरा फेसलेस असेसमेंट, यहाँ देखो यहाँ पे ई प्रोसीडिंग करके कॉन्सेप्ट एक आता है, तो मैंने लॉग आउट कर दिया। तो ई प्रोसीडिंग में जाके यहाँ पे आपको ये जो कुछ भी है यहाँ से आपको सबमिट करना है, आपको पता नहीं होगा सामने कौन बैठा है। ठीक है, तो इनकम टैक्स का पोर्टल है, वहाँ पे ही आपकी ई प्रोसीडिंग सेक्शन के अंदर ही आपको उसको आंसर देने हैं, वहाँ पे ही आपको स्कैन करके प्रूफ अटैच करने हैं। देखो, डेजिग्नेटेड पोर्टल मीन्स द वेब पोर्टल डिजाइन बाय द चीफ प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इंचार्ज इन द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। मतलब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, और उसका जो डेजिग्नेटेड पोर्टल, मतलब ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, वही डेजिग्नेटेड पोर्टल है। उसको डिजाइन किसके थ्रू की गई है, कोई भी कंपनी ने, ये इन्फोसिस ने डिजाइन किया हुआ है। हाँ, लेकिन उसका मालिक कौन है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, जिसको पावर दिया गया है, सीबीडीटी ने पावर दिया है, वो उसके डायरेक्शन से जो पोर्टल बना है वो पोर्टल को डेजिग्नेटेड पोर्टल बोलते हैं। और पोर्टल मतलब वेबसाइट। और अभी कौन का डेजिग्नेटेड पोर्टल है, ये हमारा जो इनकम टैक्स इंडिया .gov.in है, ये पोर्टल इनकम टैक्स इंडिया .gov.in, ये हमारा डेजिग्नेटेड पोर्टल है। ठीक है, देखो, सीबीडीटी हैज इश्यूड द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है, उसने गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई कैसे फॉर्मेट में कैसे स्क्रूटिनी असेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक करना है। ओके, देखो, स्कोप ऑफ फेसलेस असेसमेंट प्रोविजंस, this provides that the assessment, reassessment, recomputation under section 143 subsection 3, section 144 and 147 shall be made in a faceless manner of the specified territorial areas, person or class of the person। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे इसके रूल्स बनाए हैं। देखो, तीनों टाइप के असेसमेंट, नॉट ओनली 143 मतलब स्क्रूटिनी असेसमेंट नहीं, बेस जजमेंट असेसमेंट और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो दूसरा और तीसरा वाला है, वो सभी असेसमेंट अभी फेसलेस होते हैं। मतलब તમારે ઇન્કમ ટેક્સની ઓફિસમાં જવાની જરૂર જ નથી। ઓકે, you have to just draft the reply, you have to just produce the proof, they will issue the order, if you are not satisfied you can go for the appeal also। okay, now see, देखो, authorities to conduct the faceless assessment, कौन कौन faceless assessment कर सकता है, तो ये सब में हमें इंटरनल इनकम टैक्स की मैटर है, उसमें हम नहीं जाते। व्हाट इज फेसलेस असेसमेंट, दैट वी हैव अंडरस्टूड, so I am not going in this, but see, असेसमेंट जो है ये अपना कौन सा वाला, ये स्क्रूटिनी असेसमेंट कितने टाइम में हो जाना चाहिए। तो एज पर सेक्शन 153 द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 इज 20 within 21 months from the end of the assessment year if the income was first assessable। देखिए, ये 70-18 वाला असेसमेंट ईयर માટે आप रूल लेना। ओके, अभी हम हमारे साल का देखते हैं, 22-23 के लिए कौन सा है। देखो, विदिन 12 मंथ, देखो ये अभी ये ऊपर का हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू मस्ट नो कि करंट ईयर के लिए कौन सा है। तो देखो, 22-23 ऑनवर्ड्स ये हमारा जो
स्क्रूटिनी असेसमेंट वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो स्क्रूटिनी असेसमेंट की नोटिस आपको कब मिलेगी, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर सपोज ये मेरा प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर मेरा सपोज 23-24 है, तो 24 31 मार्च 2024 को मेरा असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा और उसके 3 महीने में मुझे नोटिस मिलेगी। और ये जो मेरा असेसमेंट ईयर जो है उसके 12 मंथ के अंदर, असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है उसके 12 मंथ के अंदर मेरा स्क्रूटिनी असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंप्लीट करना है। मेरा वर्षों સુધી ખેંચે नहीं। ओके, स्क्रूटिनी असेसमेंट कितने टाइम में कंप्लीट करना है, क्योंकि विद इन देखो ये हमारे को 22-23 और उसके बाद के जो भी साल है उसके लिए व्हाट इज द टाइम पीरियड, विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर in which the income was first assessable. ઓકે, મતલબ જે અસેસમેન્ટ યર છે એ અસેસમેન્ટ યરથી 12 મહિનામાં અસેસમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરવાનું. હેલો, જસ્ટ મિનિટ. ગુડ મોર્નિંગ બોલે છે. હા ના ભાઈ કશું જ કેવાયસી નથી કરાયો, બેલેન્સ શીટ નથી આવી, કશું જ કરાયું નથી. એ પેલા જે જૂના પૈસા હતા ને આપી દીધા, પછી આગળ કશો પ્રોસેસ કર્યો નથી. બરાબર. તો રોજની 100 રૂપિયા પેનલ્ટી ચડે છે, કોણ ભરશે? તો કંપની બંધ થઈ જશે, બેમાંથી એક વસ્તુ થશે. બરાબર. એટલે કશું થયું નથી, તમે જાણ કરજો કે ભાઈ મેં તપાસ કરી તમારા સીએ અને સીએસની ત્યાં, હજુ કશું થયું નહીં, બેલેન્સ શીટ પણ ફાઇનલ થઈને આવી નથી. બરાબર. અને જો બેલેન્સ શીટ ટાઈમ પર ફાઇનલ નથી થઈને તો પ્રોસિક્યુશન થશે. બરાબર, એટલે કમ્પાઉન્ડિંગ ઓફ ઓફેન્સમાં જવું પડશે. એટલે બહુ કોર્ટમાં નહીં પણ મારે રિજનલ ડાયરેક્ટર પાસે જવું પડશે. ઓકે, અને એની પાસેથી એ તમારી પાસે લાખો રૂપિયા પેનલ્ટી, એક દિવસના 1 લાખ રૂપિયા પ્રમાણે પેનલ્ટી ચાર્જ કરી શકે છે. બરાબર. હા, એટલે ઠોકાઈ જશે. એટલે એમને કહેશો જે બી કરવું હોય ને જલ્દી કરાવે, બાકી છે ને બહુ હાલત ખરાબ થઈ. હા, હા, ચાલો હું એક ક્લાસમાં છું, પછી વાત કરું હે ને. હા, હા, દેખો આ નોટબુક જો આપણે અત્યારે ટાઈમ લિમિટમાં આટલું યાદ રાખો, ઠીક છે? 12 month from the relevant assessment year you are supposed to the department is required to complete this scrutiny assessment. Now the next assessment is base judgment assessment and income escaping assessment. ये दो टाइप के assessment है that we will discuss in today's evening lecture. और probably अगर today there is a possibility કે suppose હું બહારગામ જવાનો છું, suppose હું ના આવી શક્યો, આજે સાંજે નહીં લઉં, પણ આવતીકાલે સવારે છે કોઈનું લેક્ચર? તો આવતીકાલે આપણે બે ટાઈમ No, લેક્ચર. sir. No, sir. ઓકે, તો આવતીકાલે પણ સવારે 2 કલાક, સાંજે 2 કલાક એવું રહેશે. આજ સાંજનું નક્કી નથી બેટા, પણ આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ કે હું બહારગામ જાઉં છું, આજે જો આવી ગયો તો I will complete the I will take the lecture, so that I will inform you. अगर जल्दी आ गया तो आज शाम को ये हमारा